Morning student, I am Gayatri Sharma again here with a new video. I welcome you in today's science class. Students, today we are going to do question answer from your My Observation book, chapter number 4. The name of the chapter is plants. So let's start. Write ट्रू और फॉल्स. आपने स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड करना है और ट्रू और फॉल्स को आपने राइट करना है. तो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. दिस स्टेटमेंट से इज सेइंग दैट रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. जो रूट्स होती हैं दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स की होती हैं. इज इट राइट? येस, दिस स्टेटमेंट इज राइट बिकॉज roots are mainly of two types, tap root and fibrous root. So this statement is true. So write here true. Then second, leaves observe water and mineral from the soil. अब statement is saying that leaves observe water and mineral from the soil. जो leaves हैं वो water और mineral को soil में से observe करती हैं. Is this statement is right? No, this is wrong because roots observe water and mineral from the soil. क्योंकि water और mineral को observe करने का काम किसका होता है? Roots का होता है. पर यहाँ वो क्या कह रहा है कि leaves का है. तो this statement is false. तो right here false. Then third is flowers are the beautiful part of a plant. Is it right? Yes, this statement is very true because flowers are the beautiful part of a plant. Plant का सबसे beautiful part है जिसको देखते ही हम खुश हो जाते हैं, वो कौन सा है? फ्लावर है. तो this statement is true. Then D, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस शुगर एंड ऑक्सीजन. जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके अंदर शुगर और ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट हैं वो हमें वो मिलते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स चेंज, लीव्स ऑफ प्लांट्स चेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Then E statement is that the part of a plant below the ground is called shoot system. The part of a plant below the ground, below mean नीचे, ground के नीचे का जो part है is called the shoot system. So students, as you know that on the basis of plant's part, plant can be divided into two parts, shoot system and root system. What is shoot system and what is root system? The part of the plant that is above the ground is called shoot system and the part of the plant that is below the ground is called root system. तो root system में क्या आता है? जो बिलो द ग्राउंड है वो क्या है? रूट सिस्टम है. जो अबव मीन ऊपर, जो ग्राउंड के प्लांट का जो पार्ट अबव द ग्राउंड है वो क्या होता है? शूट सिस्टम होता है. पर यहाँ वो क्या कह रहा है? द पार्ट ऑफ अ प्लांट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इट इज रूट सिस्टम. तो राइट हियर फॉल्स. Right here false. Then question number second, use the words given in the cloud to fill in the blanks. आपने यहाँ पे clouds में कुछ words हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, फूड मेकिंग, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस, शुगर एंड वाटर. These are the words. You use the words to fill in the blanks. आपने इन words को fill in the blanks में आपने use करना है. तो लेट्स स्टार्ट. लीव्स आर नोन एज द डैश फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट. अब जो लीव्स हैं उनको फूड मेकिंग फैक्ट्रीज कहा जाता है प्लांट का बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द
प्लांट। जो फूड मेकिंग फैक्ट्री होती है उसमें क्या काम होता है, जनरली उसमें फूड मेकिंग का काम होता है। तो लीव्स को क्या कहा गया है, फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ अ plant because they prepare food for the plant. That's why leaves are known as the food making factories of a plant. Now page number 838. There is a green substance called dash present in the leaves. Students, as you know that green leaves are generally green in color. Do you know why they are green in color? Leaves are generally green in color due to the presence of a green substance called chlorophyll. तो जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण है, उनका क्लोरोफिल के कारण है। तो देयर इज अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। तो कौन सा ग्रीन सब्सटेंस है जो लीव्स के अंदर होता है, तो दैट इज क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल। देन अ प्लांट टेक डैश फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट्स टेक, एयर से क्या लेता है प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से वाटर लेता है। द लीव्स ऑफ अ प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब जो प्लांट है वो क्या करता है, जो लीव्स हैं प्लांट की वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसकी प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्या करती हैं, किसमें चेंज कर देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को शुगर और ऑक्सीजन के अंदर चेंज कर देती है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो लेट्स रिवाइज अगेन। Leaves are known as the food making factories of a plant. There is a green substance called chlorophyll present in the leaves. A leaf plant takes carbon dioxide from the air and water from the soil. The leaves of a plant convert carbon dioxide and water into sugar and oxygen with the help of sunlight. This whole process is known as photosynthesis. So now question number 3. Name the main part of a plant. तो मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट कौन से हैं, the main part of a plant are roots, stem, leaves, flowers and fruits. तो मेन पार्ट कौन से हुए, the main part of a plant are roots, stem, leaves, flowers and fruits. These are the main part of a plant. Now fourth question. Write the functions of the root in a plant. जो प्लांट के अंदर रूट का फंक्शन है, यानी कि रूट क्या काम करती है, उसके क्या काम है, क्या वर्क करती है, वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं। तो राइट द फंक्शंस ऑफ अ रूट इन अ प्लांट। सबसे पहले इट सपोर्ट द प्लांट फिक्सिंग इट इन द सॉइल। सबसे पहले प्लांट रूट है वो क्या करती है, प्लांट को फिक्स करती है सॉइल के अंदर, क्या करती है, उसको फिक्स करती है प्लांट को। अगर रूट नहीं होगी तो प्लांट क्या हो जाएगा, जल्दी गिर जाएगा। तो इट सपोर्ट द प्लांट फिक्सिंग इट इन द सॉइल। देन सेकेंड, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल है वो क्या करती है, रूट है वो क्या काम करती है, वाटर और मिनरल को सॉइल में से ऑब्जर्व करती है। जो सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल है उसको ऑब्जर्व करने का काम है वो कौन करती है, रूट करती है। तो इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। देन थर्ड, in some cases like radish and turnip, it helps to store food for the
प्लांट। अब देखिए जो रेडिश और टर्निप है उनकी कैसी रूट होती है, दे हैव टैप रूट। सो जो इन सम केसेस जैसे कि रेडिश और टर्निप है, जो रूट्स प्लांट है वो क्या करते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, प्लांट के लिए फूड को स्टोर भी करते हैं। जो एक्स्ट्रा फूड होता है लीव्स के द्वारा, जो एक्स्ट्रा फूड लीव्स के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, कुछ तो कहाँ सेंड कर दिया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इनटू द रूट। तो इन सम केसेस लाइक रेडिश और टर्निप, it helps to store food for the plant. These are the functions. It supports the plant fixing it in the soil. It observes water and mineral from the soil. In some cases like radish or turnip, it helps to store food for the plant. So students, that's all. You will, today's your homework is that you will do question number 1, 2, 3 and 4 in your my observation book, and also try to learn it. Thank you. The remaining part we will do in next video. Thank you. Have a nice day.